आदिवासी infectious things नाही. आपण नाही ऐकणार. तू असं माझ्याशी बोलतेय. Sorry ma'am. चौपट केलं. तर मला दुसऱ्यांदा थोडी दे. मी पार्टीला जाऊ शकतो. तुला माझा प्रॉब्लेम माहिती आहे ना. ते लोकांना बोलतील ना. तू शिंक करते घरात बस. तुझ्यासारखं नाही का? हे वाईट शिकतो. पतंग जो माहिती आहे. त्याच्यात कमी झालं. आतमध्ये का फोकस करतो? आतमध्ये पण होती. काय आलेलं वाचला पहिला. तू काय तू 2-2-4 कुठे? मोबाईल नाही का? काय शोधताय? Good
उशा पडलेला हे पडलेलं ते मला बघून बघून ना जाम हा वैताग येऊन जातो या ठेवलं समृद्धी हे सगळं वरती ठेवून आता मम्मी अरे मम्मी हलवू नको राहू दे एवढंच ठेवलेलं आहे. Good morning, sir. Yeah, good morning. Good morning, all. Good morning, sir. Good morning, So in the last part we discussed about dimensional formulas and unit of some physical quantities. On the and this class will discuss about more physical quantities and their units and dimensions formulas, right? So next quantity you can write acceleration. And we know that the formula for acceleration is nothing but change in velocity divided by time. So change in velocity by time. So if it is velocity, yeah, if it is speed, increase in velocity, decrease in velocity, everything or change in velocity, that velocity है तो सबका dimensional formula same ही रहेगा. And what is dimensional formula for velocity? LT raised to minus LT minus 1. LT raised to minus 1 divided by time T. का dimensional formula हो गया T. तो क्या मिलेगा? LT raised to minus minus 2. minus 2. Yeah. And उसका corresponding unit रहेगा length का unit है meter and time का unit है second. So meter second raised to minus 2. Put on this pen. Sir, how did LT came? Velocity. Velocity का dimensional formula velocity क्या था? Displacement by time है ना? Yes. तो velocity का if you're having any doubt आप ऐसा लिख देना. Velocity का dimensional formula है displacement by time का dimensional formula. Displacement by time मतलब क्या हो गया? L by T. मतलब LT raised to minus 1. Can you explain again? Yeah. Our aim is to find out what about the dimensional formula for acceleration. So what is acceleration? Acceleration is change in velocity divided by time. So velocity का dimensional formula हमको पता है L T raised to minus 1. ये पता है? ये समझ में आया? L T raised to minus 1.
Yes, sir. डिवाइडेड बाय टाइम का t, तो क्या आएगा l t रेज टू -1 -1 l t रेज टू -2. समझा? Yes, sir. Yes, sir. तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना, L T स्क्वायर, L अपॉन T स्क्वायर. No, l t raised to -2. Okay. Okay. Next one, Also I इसका think SI यूनिट क्या आएगा? MS minus meter second raised to -2. Hmm. Then you might be knowing this parameter momentum. पता है what is momentum? Yes, sir. Force into displacement. Mass into Mass Yes, into mass volume. into volume. Mass into mass into Velocity. velocity. Volume. Mass into mass volume into नहीं, velocity. velocity. Okay. Hmm. तो mass into velocity है, तो बोलो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? Sir, MLT raised MLT One. minus 2. MLT minus 1. 1. 1. Okay. So we can write mass का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m. Velocity का हो गया l t raised to LT -2. minus 1. 2. So we can write it as, sorry, l t raised to -1. 1 na sir. Yeah. तो we can write corresponding unit क्या रहेगा? मास का किलोग्राम, डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकंड. किलोग्राम मीटर सेकंड रेज टू -1. 1. Run this one. Sir, बोलो बेटा. does this chapter have numericals? Yes, definitely. सर मोमेंट ऑफ फोर्स भी होगा ना? मोमेंट ऑफ फोर्स कपल होता है. Then you can write force. Force के लिए इक्वेशन क्या है? Mass Mass into into acceleration. मास ML. इनटू एक्सेलरेशन. तो बोलो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? MLT minus LT minus 2. minus -2. mlt raised to -2. मास का m, एक्सेलरेशन का lt raised to -2. तो यूनिट क्या आएगा? किलोग्राम मीटर सेकंड raised to -2. And this is also known as nothing but 1 Newton. 1 kilogram meter second raised to -2 is known as 1 Newton. 1 Newton. Okay. Next Torque will parameter, be force into displacement. okay. Now let's go to the next parameter, which is I think you know that work, right? Yes, sir. What is the formula for work? Force into F displacement. to S. Force into Force into displacement. displacement. तो क्या आएगा? M L 2 L force to T minus 2. Raised to minus. Yeah, ml square t raised to -2. So we can write force का dimensional formula था ml t raised to -2 minus 2. into displacement का हो गया l. तो dimensional formula होगा m l square t raised to -2. और इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड रेज टू -2. एंड एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट क्या होता है? Joule. जूल होता है. ओके 1 joule. हाँ, 1 जिसको बोलते हैं 1 जूल और 1 न्यूटन इंटू 1 न्यूटन मीटर. हो गया? Yes, sir. Done. Yeah. Now we can go for next quantity, which is nothing but impulse. सुना है सर कुछ impulse? नहीं sir. Force into time. Force into time. Yes, impulse is nothing but the product of force into time. ये आगे पढ़ेगा, कुछ फॉर्मूला पता नहीं है, no need to worry about that. Force into time. तो देखो क्या आएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? MLT minus 1. -3. -1. तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m l t raised to -2 मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम का क्या हो गया? t हो गया. तो वी आर गोइंग टू गेट m l t raised to -1. So we can write its corresponding
unit also, which is kilogram meter second raised to -1, और हम लोग उसको फोर्स इनटू टाइम देके न्यूटन सेकंड भी लिख सकता है. Yes, sir. Done. Then you can write energy. एनर्जी कैसे कैलकुलेट करता है? एनर्जी Work इज upon नथिंग बट time. नो Work नो upon वर्क बाय time. टाइम पावर हो गया, वो पावर हो गया. Power into time. Power into time. Okay, energy is nothing but ability to do work. To work. Yes, sir. Okay, so work का यूनिट और एनर्जी का यूनिट सेम है. ठीक है, तो एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी टू डू वर्क. सो वी कैन राइट द यूनिट ऑफ वर्क एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी और डायमेंशंस ऑफ एनर्जी आर सेम. और कोई भी एनर्जी हो सकता है, मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, व्हाटएवर मे बी द एनर्जी, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम रहेगा, सेम एज लाइक वर्क, बिकॉज एबिलिटी टू डू वर्क इज नॉट नथिंग बट एनर्जी. तो हमने वर्क फाइंड आउट करके एनर्जी कैलकुलेशन करता है. तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने ऑलरेडी लिखा था, वो क्या था? ml square T minus 2. और उसका यूनिट भी लिखा था, नथिंग बट जूल और न्यूटन मीटर. तो याद रखना है, कोई भी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहता है. ओके, अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया है तो भी ये रहेगा, काइनेटिक एनर्जी दिया है तो भी ये रहेगा. ठीक है, हीट एनर्जी दिया है तो भी चार्जिंग रहेगा. लगा. देन न्यूटन मीटर है ना? न्यूटन मीटर, न्यूटन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है ना वर्क का. Yes, sir. Then we can go for power. So power by unit work Work divided done by, upon time. yeah, that is rate of doing work, work divided by time. तो बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? ml square t Raised to -3. -3. या वर्क का हो गया ml square t raised to ml square -2. T raised to -3. टाइम का हो गया t, तो t ऊपर जाएगा तो t raised to -3 हो जाएगा. We can write ml square t raised to -3. And Yes. पावर का यूनिट आपको पता होगा, it is watt. ठीक है, जूल पर सेकेंड, which is known as nothing but a watt. Represented by W. Yes, sir. Done. Okay. Sir, 1 minute, sir, 1 minute. Yes, sir. Okay. I can write next one, which is about this. Next parameter, you can write pressure. Area upon force. Area upon Force No, no. upon area. Force by area. हाँ, force. The pressure is force divided by area. Hmm. और दूसरा एक पैरामीटर है which is known as stress, that is also equal to force by area. Okay, Okay. pressure और stress same ही formula है, force divided by area. Area. तो बोलो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? ml minus 1 ml t minus 1 t 2. minus 2. ml minus 2 upon Hmm. L square. L square. मतलब ml minus 1 आएगा. ml. ml minus 1 t minus 2. Yeah. T minus 2. Yes. तो फोर्स का होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ml t raised to -2 डिवाइडेड बाय एरिया का L स्क्वायर. तो L ऊपर जाएगा तो ml raised to -1 t raised to -2. ना उसका यूनिट तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर,
वी कैन राइट न्यूटन मीटर रेज टू -2। और आपने सुना होगा ये Newton प्रेशर का meter यूनिट है पास्कल। ऐसे सिस्टम में यूनिट यूज करता है पास्कल। सर 1 बार भी यूज करते हैं ना प्रेशर के लिए? यस यस यस, मतलब ऐसा ही सिस्टम है पास्कल है, वो दूसरा सिस्टम है। The specific capacity. सब आएगा, एक मिनट। And you can write linear mass density. Linear mass density. ऐसा कुछ सुना है linear mass density? नो सर। No, sir. Linear mass density means mass per unit length. तो अगर हमने एक straight object दिया है तो हम लोग यूज करते हैं उसका linear mass density, mass per unit length. दूसरा एक density होता है which is known as its areal density और surface mass density means it is mass per unit area. एंड दूसरा होता है वॉल्यूम मास डेंसिटी, मतलब नॉर्मल जो डेंसिटी दैट इज मास बाय वॉल्यूम। तो लीनियर मास डेंसिटी मींस मास डिवाइडेड बाय लेंथ। तो बोलो इसका डायमेंशंस क्या आएगा? ml ml -1 ml -1, ml raised to -1। -1 इसका यूनिट होएगा किलोग्राम मीटर raised to किलोग्राम मीटर -1। -1। यस सर इसका डेफिनेशन क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। ओके सर। मतलब if you are saying that linear mass density of a steel wire is 1 kilogram per meter, that means 1 meter का steel का wire लिया तो उसका mass 1 kilogram होगा। That is the meaning of that. So what is mass per unit length? 1 meter wire का length mass कितना है उसको linear mass density बोलता है। यस Sir, why do we take m in every equation? Not in every equation, किसमें mass आएगा तभी तो लेगा ना। Like velocity लिया है तो उसमें distance by time है तो mass तो है नहीं है, तो L into L T raised to -1 लिखेगा। मास के ऊपर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, उसके ऊपर डिपेंड। Then you can write another one which is known as nothing but a strain. Strain का definition it is change in dimensions by original dimensions. Okay, this change in dimensions by original dimensions, मतलब change in length by original length हो सकता है, change in area by original area हो सकता है, like that. Okay, तो बोलो इसका dimensional formula क्या आएगा? No dimension. no नो dimension डायमेंशंस। ठीक है, अगर मान लो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ कर तो लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला L होता है, तो इसको क्या रहेगा? L raised to 0, और you can say that it is a dimensionless quantity। और इसका कुछ यूनिट भी नहीं है, so we'll say that it is not having any unit, no unit, and it is dimensionless। तो आप उसको m raised to 0, L raised to 0, T raised to 0 लिख सकते हैं। Can you scroll up once? हो गया? यस Sir, 1 minute. I can write next one which is nothing but energy density। Energy density, एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग है, लाइक नॉर्मल डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम रहता है। एनर्जी डेंसिटी का मीनिंग है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो दिस इज एनर्जी stored per unit volume is not nothing but this energy density।
तो देखो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा? एनर्जी का होगा ml square t raised to minus 2 T raised to minus divided by l raised to 3. अच्छा इसका ml minus 1 Sir, T minus 2 आएगा Yes, ml raised to minus 1 minus 1 और T t raised to minus raised to 2 minus 2. हम्म, तब इसका यूनिट लिख सकता है, एनर्जी का यूनिट हो गया जूल और वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब. तो यू कैन राइट जूल मीटर रेज़ टू माइनस 3. सर बोलो बेटा. सर वॉल्यूम को हम मास अपॉन डेंसिटी नहीं ले सकते क्या? हाँ ले सकता है, उसमें क्या सर फिर सेम आएगा क्या आंसर? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? फिर डेंसिटी का फिर मास बाय वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, तो मास Okay. मास कटेगा. ऐसा क्यों करना है? yes sir done. Then you can write angular displacement. वो तो ऑलरेडी हमने सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया था. मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब नॉर्मल एंगल थीटा. तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या? थीटा इज इक्वल टू, थीटा का डेफिनेशन क्या था? आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस. तो बोलो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? ये इसका m तो कट हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा. कुछ भी नहीं तो होएगा. LL. तो we can write this dimensionless. Yes. And उसका यूनिट है यूनिट रहेगा रेडियंट. रेडियन. यस. Radian. इसको डायमेंशन नहीं है बट यूनिट है. yes sir done. देन हमने डिस्कस किया था सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी. एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या था? एंगुलर सर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. L0 by t minus 1. हाँ तो क्या आएगा? थीटा का तो डायमेंशन नहीं है और हाँ. t का t T हो गया, minus. तो क्या तो t t raised raised to to minus minus 1 बाकी सब यूनिट बोलो. Radian per second. रेडियन पर Radian सेकंड. per second. पर सेकंड. यस. सर ये एंगुलर वेलोसिटी जरा एक्सप्लेन कीजिए ना, मतलब हम पहले वाले बैच से ना तो उसमें नीक बताया है. Angular velocity means angular displacement by time. Same as like velocity displacement by time होता है ना. तो angular velocity is angular displacement by time. okay. yes sir done. Sir, can you scroll up for me? सर ये सारे फॉर्मूलाज याद करने पड़ेंगे ना? Done, sir. नॉर्मली कितना हम लोग को नॉर्मली पता है उसके ऊपर ही क्वेश्चंस अभी पूछता है. अभी हर एक चैप्टर में जाके आप लोग एनीवे सीखेगा कि सक्सेस क्या है. okay. ऐसा अभी मतलब जस्ट अगर कुछ पता नहीं है ऐसा रटने का कुछ मतलब नहीं है. जो भी नॉर्मल फॉर्मूलास पता है उसमें से डिराइव करने के लिए कोशिश करें. okay sir. देन एंगुलर वेलोसिटी के बाद हमने क्या डिस्कस किया था? एंगुलर एक्सेलरेशन डिस्कस किया था, राइट? सो नेक्स्ट वन यू कैन राइट एंगुलर acceleration. And angular acceleration is change in angular velocity divided by time. तो angular velocity का तो अभी हमने फाइंड आउट किया था, क्या था? t raised to minus 1 आ रहा है divided by t, तो क्या आएगा? T raised to minus 2. t raised to minus 2. and unit बोलो. रेडियन पर सेकंड स्क्वायर. radians per second square. Okay. Yes sir. Yes, sir. Yeah. Then we can write about this torque. Actually torque होता है nothing but torque हम लोग calculate करता है the product of its position vector and force. तब आगे पड़ेगा, अभी आप जस्ट इतना याद रखो position vector into force आपको torque मिलेगा. सर तो fs क्यों नहीं होगा? s
वो डिस्प्लेसमेंट करे तो वर्क का इक्वेशन है वो, ये पोजीशन वेक्टर इनटू फोर्स है, ओके एंड आर का वैल्यू, आर मतलब लेंथी है, तो ये क्या होगा, एल होगा। फोर्स का क्या होता है, एम एल टी रेज टू माइनस टू, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो क्या आएगा, एम एल स्क्वायर ml square T raised upon to t minus square. माइनस टू, यस। तब उसका न्यूटन मीटर Newton meter. सर एनर्जी और टॉर्क का ऐसा यूनिट सेम है ना? एनर्जी और या सेम है, सेम। Then we might be studied in gravitation about universal gravitational constant, no? Yes sir. yes Yes. We will discuss how to find out the dimensional formula of universal gravitational constant. So I think you might be knowing that equation, F is equal to क्या था, G G M1 m1 m2 upon r square. तो उसमें से G का वैल्यू क्या मिलेगा, G is equal to F into R square divided by M1 M2 मिलेगा। हम्म अभी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला पुट कर दो तो क्या आएगा, M L MLT minus minus T minus 2. into and radius का minus 2 L into square L square upon m upon mass into kg mass square. m square। तो क्या आएगा, M m ऊपर sir आएगा m minus 1 L cube T minus minus cube 1 T raised to L minus 2, yes। तब इसका करस्पॉन्डिंग मतलब यूनिट भी लिख सकता है, दैट इज फोर्स का न्यूटन हो गया, न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर किलोग्राम रेज टू माइनस 2। न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। Yes sir. done. Okay. Sir, the Sir, third one, one what do you have written, sir? Universal gravitational? Constant. Oh, okay, sir. sir one सर इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किससे आते हैं? बता दो बता। सर डन हो गया? हाँ yes sir yes sir Sir, can you just write the unit? Tell me the unit of energy, universal gravitational constant. Newton meter square kilogram raised to minus 2. Thank you, sir. Now discuss about another parameter which is known as nothing but moment of inertia. ये actually rotation motion में आता है, moment of inertia, which is a product of mass into distance square or mass into radius square, mr square. Okay. तो क्या आएगा dimensional formula? ml square. ml square. तो mass का होगा किलोग्राम, distance का meter raised to meter square ml kilogram meter square. Now the other common parameter that we are using is known as velocity gradient. So whenever we are writing velocity gradient, temperature gradient, energy gradient, etc., so gradient का meaning है that quantity divided by distance. Okay. So velocity gradient is basically representing change in velocity with respect to distance. Okay. So we can write dv by s or change in velocity with respect to change in distance.
टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस। अच्छा, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? LT minus upon L. तो क्या आएगा? T raised to T1. -1 or you can write second raised to -1. And you can write another parameter which is known as something but as surface tension. We are having a separate topic, surface tension. But abhi just yaad rakho, the equation for surface tension is nothing but force per unit length. Force by length. So you can find out what about the corresponding dimensions and unit. सर इससे कुछ तो वाटर ड्रॉप ऐसा मतलब फ्लैट Yeah, why, same. Surface tension is nothing but the on the surface So of it will water. be MT minus MT 2. raised to -2. ml t raised to -2 divided by L. तो क्या आएगा? m LL cancel हो t जाएगा. raised to -2 LL cancel. The unit is kilogram meter raised to -2. सर टी बोलो है बेटा। ना? पर T हो ना तो हाँ, second square आएगा. second raised to -2. Yeah. Okay. Yes sir. Yeah. Sir, no, sir. 1 minute. Okay. Sir, done. Next one, we'll discuss about this frequency. So you might be heard about this word frequency. It's represented by nu, yeah, n. Frequency क्या होता है? Reciprocal of time period. है ना? The number of oscillations per Rotations. second, yeah, rotations per second is known as Upon a time. frequency. तो ये क्या होता है? Frequency is reciprocal of time period. तो बोलो डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा? T minus E raised to -1. T raised to -1 और यूनिट क्या आएगा? Second raised to -1 और it is known as nothing but heads. Yeah. Then you might be studied in chemistry about the relation between energy and frequency. ना क्या था relation? नहीं सर नहीं किया नहीं पता. E is नहीं equal to पढ़ा. h nu. E is equal to h nu. नहीं Atomic सर. start किया क्या? नहीं नहीं सर Okay. मोल कॉन्सेप्ट पे अभी सर. नहीं रिडॉक्स है. नहीं वो redox reaction. Oxidation. हाँ. Okay. तो उसके अंदर ही है. Yeah. ये मतलब इसमें जो केमिस्ट्री में डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा है क्या? नहीं सर. नहीं नो सर. सर. नहीं सर. ये कौन सा था? सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह किया क्या? हाँ. नहीं है. नहीं सर. Sir, सर no, sir. पेपर में आते हैं सर पर पढ़ाया नहीं सर. Okay. बिकॉज वो सब टॉपिक ये अभी हमने जो पढ़ रहे हैं ना ये सेम चीज केमिस्ट्री के अंदर भी है. ओके, डायमेंशनल फार्मूला एंड नेक्स्ट वन विल डिस्कस अबाउट, अगर आपने पढ़ा होगा एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन में रिलेशन है E is equal to h nu. ओके, where h is known as nothing but a Planck's constant. ये जो h है आप केमिस्ट्री में पढ़ेगा ये सब चीज क्या है.
एक्चुअली रिलेटेड टू केमिस्ट्री है. तो इसको हम लोग बोलते हैं नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट. इट इज अ कांस्टेंट एंड इसका जो टर्म है दैट इज नथिंग बट प्लैंक्स कांस्टेंट. तो आपको अगर ये प्लैंक्स कांस्टेंट का ये फाइंड आउट करना है, डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट वन, प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक्स कांस्टेंट वी कैन राइट h is equal to, इक्वेशन से क्या हो जाएगा, e डिवाइडेड बाय न्यू हो जाएगा. न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो अभी देखो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा. एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला होगा ml स्क्वायर t raised to -2 बाय फ्रीक्वेंसी का t raised to -1. या ml2 t raised to -1. -1. तो ये जाएगा ml स्क्वायर t raised to -1. और इसका यूनिट लिख सकता है, एनर्जी का यूनिट जूल था और दिस t raised to फ्रीक्वेंसी का. Sir, what is R? What is R? That is new. R नहीं, न्यू. साइन ऑफ न्यू ना. फ्रीक्वेंसी Okay, okay, okay. फ्रीक्वेंसी का सिंपल हम लोग ऐसा यूज करते हैं. It's like gamma. हो गया. सर इसका वैल्यू बताया क्या आपको, प्लैंक्स कांस्टेंट? 6.36 into 10 raised to -12 ऐसा कुछ. सर जूल पर सेकंड होना चाहिए ना. जूल ऊपर आया ना बेटा, ऊपर है ना भाई. टी ऊपर आया ना. ये एनर्जी का यूनिट हो गया जूल. ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, t raised to -1. वो ऊपर हो गया तो प्लस t हो गया ना, जूल सेकंड. सर नहीं सर, सर फिर ऊपर जाएगा तो t raised to -1 आएगा ना ऊपर. सर इन द नहीं वो ml. बोलो सर अपने मैं बोलूं, h is equal to e divided by न्यू. समझा. e का यूनिट क्या है, जूल. इसका यूनिट क्या है, सेकंड रेज़ टू -1 है ना. तो ऊपर गया तो सेकंड रेज़ टू मतलब +1 हो गया ना, जूल सेकंड. Then you can write for temperature. तो टेम्परेचर बेसिकली क्या है कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है ना. तो टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला समटाइम्स थीटा से रिप्रेजेंटेशन करता है और मतलब थीटा से रिप्रेजेंटेशन करता है और के से रिप्रेजेंटेशन करता है. ठीक है. कुछ क्वेश्चन में उसको के देता है डायमेंशन में, कुछ क्वेश्चन में थीटा देता है, बट बोथ विल बी सेम. ओके. तो वी कैन राइट उसका करस्पॉन्डिंग यूनिट तो हमको पता है केल्विन ही है, and it is represented by capital letter K. तो डायमेंशंस में भी कुछ टाइम में K यूज करे, उस टाइम में थीटा यूज करेगा. should not get confused. अभी हम देखते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या है. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सर पहले हीट कैपेसिटी आएगा ना. तो आई थिंक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी उसे पता होगा, राइट? यस. सो उसके लिए इक्वेशन क्या है, Q is equal to C into Q L. is equal to delta. ms delta T, where m is known as mass. S is specific heat capacity. Delta T is heat capacity is change in time. change in temperature. Temperature. तो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, Q डिवाइडेड बाय m डेल्टा T. Q क्या है, Heat energy. हीट एनर्जी. ओके. तो वी कैन राइट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए इक्वेशन होगा which is nothing but heat energy divided by mass divided by temperature. तो Q divided by m and delta T. तो एक और फॉर्मूला है ना, C into L से कुछ तो. वो लेटेंट हीट है. हाँ वो लेटेंट हीट है ना, ml. या ml.
देखिए स्पेसिफिक कैपेसिटी का हीट का यूनिट क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ml, हीट का होगा ml t raised to sorry ml square t raised to -2 -2 डिवाइडेड बाय मास का क्या हो गया, m हो गया, और टेम्परेचर का k लिख सकते हैं या थीटा लिख सकता है, ठीक है। तो वी कैन राइट दिस विल बी इक्वल टू l square t raised to -2 k raised to -1। और इसका यूनिट हम लोग लिख सकते हैं जूल किलोग्राम रेज टू -1 केल्विन रेज टू -1। सर बोलो बेटा। सर ऊपर ml स्क्वायर t -2 कैसे है? हीट एनर्जी है ना, दिस इज एनर्जी, हीट एनर्जी। तो वॉट एवर में भी दी एनर्जी, सबका डायमेंशनल फार्मूला वर्क का डायमेंशनल फार्मूला ही रहता है। सर ये कांस्टेंट है क्या? किलोग्राम कहाँ से आया? मतलब वॉट एवर में भी दी एनर्जी, सब एनर्जी का डायमेंशन Okay, सेम ही okay. रहता है। कुछ तो एनर्जी है सर। हाँ हीट एनर्जी है वो। हाँ ओके। तो हीट एनर्जी या लाइट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी है सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही रहता है। यस सर, ओके। Sir, in dimensional formula, what is K? K is the dimensional formula for temperature. केजी नहीं आएगा ना शायद से, सर के मास तो कट गया ना, मास कट जाएंगे ना। इसके सबसे नहीं लिखा बेटा, मैंने ये इक्वेशन के सबसे लिखा है। Q का यूनिट क्या है? जूल। इसका यूनिट क्या है? किलोग्राम। इसका यूनिट क्या है? टेम्परेचर, केल्विन। ओके जूल किलोग्राम रेज टू -1, केल्विन रेज टू -1। ओके सर। अगर आप इसके हिसाब से यूनिट लिखेगा तो यू शुड राइट किलोग्राम स्क्वायर सेकंड रेज टू -2, केल्विन रेज टू -1। तो किलोग्राम नहीं आएगा ना, किलोग्राम तो कट mm कट गया ना, अभी L बचा है बस। अरे वो हाँ फॉर्मूला सॉरी मीटर रेज टू मीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर सेकंड रेज टू -2, केल्विन रेज टू -1। सर पर आप ही तो फॉर्मूला के हिसाब से करते हो। हाँ क्या हुआ बेटा? सर आप फॉर्मूला के हिसाब से करते हो। नॉर्मली इसका यूनिट ये टर्म में देता है, मतलब ये टर्म में नहीं देता है, तो मैंने इसका टर्म्स में लिखता हूँ कि हमारा जो भी क्वेश्चंस आएगा उसमें स्पेसिफिक कैपेसिटी का यूनिट नॉर्मली कैसे स्पेसिफाई करता है। और आपने भी क्वेश्चंस किया होगा ये स्पेसिफिक कैपेसिटी का, उसमें यूनिट कैसे देता है? कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस ऐसा देता है। यस सर। तो हम लोग को क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म में देता है वही मैं लिख रहा हूँ। Sir, wait, can you scroll up? I have to write. Done, sir. Now discuss about that heat capacity. So heat capacity क्या होता है? heat energy upon temperature. हाँ, heat energy upon temperature, और you can write mass into specific heat capacity, है ना? तो हमने मास का तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m, और ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का लिखा था L स्क्वायर T रेज टू -2 एंड केल्विन रेज टू -1 या थीटा रेज टू -1, और इसका करस्पॉन्डिंग यूनिट लिख सकता है जूल्स पर केल्विन। Sir, heat capacity is also called thermal capacity. Yes, yes. सर स्पेसिफिक हीट है ना? हाँ, एस स्पेसिफिक हीट है। अरे दूसरा गेम है।
अरे पण त्याला घेऊन देणं सगळ्यात जगात फेमस आहे. तो अरे पर सर टूर्नामेंट जिंकतो. स्पेसिफिक हीट तो सी से डिनोट करते हैं ना. Small c. अख्खा वर्ल्डची टूर्नामेंट जिंकलेला त्यांचा. सर्वेश क्या कर रहा है? हेलो सर. क्या कर रहा है? सर मैं लिख रहा हूँ. सच में लिख रहा है कि और कुछ कर रहा है? नहीं सर मैं लिख रहा हूँ. Then you can write next सर one. Let स्पेसिफिक हीट तो स्मॉल सी से डिनोट करते हैं ना. नहीं हीट कैपेसिटी सी से रिप्रेजेंटेशन करता है. स्पेसिफिक कैपेसिटी एस से रिप्रेजेंट डिपेंड्स. आपको आपका क्लास में अगर सी से रिप्रेजेंटेशन किया तो सी लिखो. Small c से होता है. कोई बोले मतलब आपको टीचर कैसे पढ़ा है उसके सबसे मैंने इसको एस लिखता हूँ. नहीं ग्रेविटी के लिए नहीं. मैं हीट कैपेसिटी के लिए नॉर्मली ऐसा लिखता है Q is equal to ms delta T and m into s होता है हीट कैपेसिटी, उसको C बोलता है, C delta T. ठीक है. अगर आपने उसको s को C लिखा तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है. जस्ट मैटर हाउ वी आर रिप्रेजेंटिंग. Next one you can write latent heat. तो latent heat आपने पढ़ा होगा, latent heat of fusion, latent heat of vaporization etc. तो अगर हमने इक्वेशन यूज करता है Q is equal to m into L, तो L हो गया latent heat. तो L को क्या लिख सकता है? Q divided by m लिख सकता है, heat energy per unit mass. तो ये हो गया heat energy per unit mass, heat energy divided by mass. तो क्या आएगा आंसर? N2T minus 2. ml square T raised to minus 2 is a unit of energy divided by mass. तो m तो कट जाएगा, तो it is L square T raised to minus 2. सर ये सब फॉर्मूलाज का टेबल टेक्स्ट बुक में है क्या? रहेगा. इसका मतलब ये नहीं कि अभी नहीं लिखना है, अभी लिखना है. Sir, we have to memorize all of this. If possible, और आपको जो भी पता है तो वो सब, अगर बहुत डिफिकल्ट इक्वेशंस आपको याद नहीं रह सकता है तो छोड़ दो. Yes, sir. Sir, because I didn't have heat in my 10th standard, so like. Yeah, sir. CBSE didn't have. Yeah. Yeah, we know that. It's okay. सर एसएससी को था. कुछ टॉपिक सीबीएसई में रहता है, वो एसएससी में नहीं रहता है, ऐसा होता है. नो प्रॉब्लम. सर करंट क्या आएंगे करंट में आएंगे. ओके. अभी हम डिस्कस करेंगे अबाउट दैट. नहीं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वगैरह पढ़ा होगा ना, और यूनिवर्सल गैस इक्वेशन पढ़ा होगा. PV is equal to PV upon T is equal to K. या PV is equal to nRT है ना. तो हम लोग यूज करता है यूनिवर्सल गैस इक्वेशन PV is equal to nRT. इसमें T क्या होता है? टाइम नहीं, टेम्परेचर. ओके. P क्या होता है? P प्रेशर. V is volume. N is number of moles. number of moles. And R is universal gas constant बोलते हैं इसको. ठीक है. गैस and T is not nothing but a temperature. सर एक और है ना, P1 V1 upon T1 equals to P2 V2 upon T2 equals to K. हाँ, वो तो PV is equal to nRT से हम लोग T लेफ्ट नीचे लिखते हैं तो कांस्टेंट हो गया ना राइट साइड में. यूनिवर्सल गैस इक्वेशन यही रहता है PV is equal to nRT. तो अगर मान लो हमको यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यू कैन राइट नेक्स्ट पैरामीटर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. So universal gas constant you can write PV is equal to nRT से R क्या हो गया? PV divided by NT हो गया. अभी अब देखना है एक का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है. प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला क्या है?
प्रेशर क्या था, फोर्स बाय एरिया था। अगर आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता नहीं है तो इक्वेशन लिखो, उसमें से डिराइव कर देना। तो फोर्स का था ml t raised to -2 डिवाइडेड बाय एरिया का क्या था, L स्क्वायर था। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला मिलेगा ml raised to -1 t raised to -2। अभी देखते हैं इसका v क्या होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LQ। एंड n नंबर ऑफ मोल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, MOL है, ठीक है। मोल एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। एंड टेम्परेचर का हमने थीटा या केल्विन से रिप्रेजेंटेशन करता है। तो ये सब वैल्यूज में पुट करके बोला उसका नेट डायमेंशनल ml इक्वेशन क्या square है, t minus 2 by mole T theta raised to -1 mole this one. डिवाइडेड बाय इनटू L क्यूब आ जाएगा, ml डिवाइडेड square बाय होगा सर ऊपर मोल आ जाएगा और इसका थीटा हो जाएगा। theta ml square तो वी कैन राइट m L L square square t raised to -3 mol raised to -1 theta raised to -1। सर बोलो बेटा। सर r का वैल्यू कितना है, R का वैल्यू 8.314। So T minus क्या हुआ, t raised to -2 हाँ t raised to रहेगा। -2, हाँ t raised to -2, ये -3 नहीं है, -2 या t raised to -2 रहेगा। t raised to -2 एंड उसका ऐसा यूनिट में लिख सकता है, जूल पर मोल पर केल्विन। ओके लिख दिया बेटा। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir, done. Sir, specific latent heat of ice. वो भी latent heat सब सेम है। Sir, but specific latent heat of ice is different. स्पेसिफिक latent heat of ice और latent heat of ice सेम ही है। Can you scroll up? स्पेसिफिक का मीनिंग है पर यूनिट मास। हाँ। अगर मास को स्पेसिफाई नहीं करेगा, मतलब आप पर यूनिट मास कंसीडर नहीं कर रहे, उसको लेटेंट हीट बोलते हैं नॉर्मली। जस्ट Okay. I can write things which are related to that current, electricity or something. तो फर्स्ट हम देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था, करंट को हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कंसीडर करता है। तो इलेक्ट्रिक करंट आई से रिप्रेजेंटेशन करता है और डायमेंशनल फॉर्मूला में ए से रिप्रेजेंटेशन करता है। ओके, सो इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी जैसा कंसीडर करता है और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ए रहता है, ए लेता है। ठीक है, कुछ टाइम में आई लिखता है, कुछ टाइम में ए लिखता है। तो मोस्ट ऑफ द केस विल राइट ए एंड उसका एसआई यूनिट का वैल्यू एम्पियर होता है, वो भी ए से रिप्रेजेंटेशन करता है। ओके, नाउ वो डिस्कस आपको अगर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इज करंट इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम। चार्ज को हम लोग डिराइव मानता है और आई इनटू टी लिखता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ए इनटू टी, और यू कैन राइट यूनिट हो जाएगा एम्पियर सेकंड। ओम्स लॉ। और चार्ज का स्पेसिफिक यूनिट रहता है विच इज नथिंग बट कूलम्स, सी से रिप्रेजेंटेशन करता है। Yes, sir, done.
then you can write the Ohm's equation law. for electric Ohm's law पे आएंगे electric field, ठीक है, electric field. So electric field होता है nothing but force per unit charge, force divided by charge. तो हम देखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है. फोर्स का क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ml t raised to -2, एंड चार्ज का हमने लिखा था a into t. तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा ml minus t raised to minus -3 minus 3 a raised to t minus -1 1. a raised to -1. Yes. So what is the SI unit? SI unit of electric field होता है nothing but न्यूटन पर कूलम. फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम. तो इसका SI यूनिट क्या है, चार्ज पर कूलम ना, N या अपॉन C. न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम. फोर्स पर यूनिट चार्ज है ना, फोर्स का हो गया न्यूटन, चार्ज का हो गया कूलम, तो न्यूटन Okay. पर कूलम. मतलब ये वाला उसके मतलब हिसाब से लिखा गया है. यस यस यस, ये इसके हिसाब से. सर ऐसे कितने मतलब इन टोटल? टोटल तो बहुत सारा है, हम लोग थोड़ा बहुत लेकर आए. हर एक चैप्टर में मतलब थोड़ा बहुत सारा इक्वेशंस हो रहता है ये. Now discuss about that potential. Normally represented by voltage or V. The potential का definition it is work, done it is upon work charge. per unit charge. Yes, yes. V is equals to इसका IR. formula हो गया कि इसका work divided by charge. It's also Equal V to equals IR. to IR. हाँ, IR हम लोग नहीं लिख रहा because R का अभी तक हमको पता नहीं है. समझा? तो work per unit charge. तो work का होता है ml square t raised to -2 divided by T. चार्ज का हमको पता है, चार्ज को कितना था, a into t. So we can write this will be equal to L square A raised to -1. a raised to -1. और सर इसका SI यूनिट क्या है? वोल्ट. वोल्ट Voltage. वोल्टेज नहीं, वोल्ट. वोल्टेज का यूनिट है वोल्ट, represented by V. सर वोल्टेज का भी डायमेंशन होता है. वही ये वोल्टेज का डायमेंशन यही है ना, पोटेंशियल और वोल्टेज सेम है. पोटेंशियल को वोल्टेज बोलता है. भी हम देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट दिस रेसिस्टेंस. या तो ओम्स लॉ से हमको पता है V इज इक्वल टू IR. I into R से R का वैल्यू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय I. अभी हमने वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला और I का डायमेंशनल फार्मूला पता है, तो वी कैन फाइंड आउट द डायमेंशनल फार्मूला फॉर रेजिस्टेंस. वोल्टेज का क्या था, ml square t raised to -3 a raised to -1, एंड करंट का क्या था, A. तो क्या आएगा, ml square t raised to -3 a raised to -2. एंड रेजिस्टेंस का यूनिट तो सबको पता है, ओम रहता है ना. ओम. हाँ.
हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. भी हम लोग ने सुना होगा कि रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, इसको क्या बोलता है? In RP रेसिप्रोकल पैरेलल ऑफ में रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस इज नोन एज कंडक्टेंस. conductance. ठीक है? कंडक्टेंस मींस नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस. तो रेसिस्टेंस का हमने डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट किया था, उसका उल्टा ही लिखना है. तो क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाय m-1 m t raised to l square t raised to -3 a raised to -2 था. इसका उल्टा तो क्या आएगा? m raised to -1 l raised to -2 t raised to 3 a raised to 2. a raised to 2. हाँ. अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होगा? सर यूनिट क्या है? SI यूनिट होता है मो. हमने उसको उल्टा लिखता है, ओम का ऑपोजिट. या तो उसको लिखता है मो और सीमेंस. So we can write 1 upon ohm also. हाँ, 1 upon we can write ohm raised to -1 या mho or Siemens. We can write next parameter, which is resistivity. So, resistivity or specific resistance. Yes, sir. Rho into L upon A. Yes, exactly. So R को हम लोग लिखता है rho into L by A. Resistance के लिए equation है rho into L by A, where rho is known as specific resistance or resistivity, L is length and A is area of resistance. For a conductor के लिए हम लोग normally लिखता है. So from this we can write this rho is equal to R into A divided by L. हम लोग बाकी सबसे वैल्यू पुट करके इसका वैल्यू फाइंड आउट कर सकता है. R का था ml square t raised to -3 a raised to -2 into एरिया का होगा L square और L का होगा nothing but L. So we can find out ml cube t raised to -3 a raised to -2. And इसका हम लोग ओम मीटर लिखते हैं. Done, sir. तो इसमें से कितना फॉर्मूला आप याद रख सकता है? ठीक है, just try to remember that. We'll continue next class. Thank you. Okay.